Okay, in the last class, I think we have done with the Nernst equation. Till the Nernst equation we have done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Applications This करनी है. class we have to do the application of the electrochemical series and the Nernst equation, right? Yes, ma'am. This is the topic that I asked you to let me remind, na? Yes, ma'am. Okay, so first we'll do about the Nernst equation because that equation we people were following. And after the application of after the Nernst equation, application will do with the electrochemical series. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो हम चलेंगे अपनी एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन. एक बार मैं लिख देती हूँ. So regarding the Nernst equation, if I am taking a simple cell that is a zinc in the solid state plus copper 2 plus in the aqueous form, that is giving us the zinc 2 plus in the aqueous form and the copper in the solid form. Okay, so if this is a simple equation, and in this simple equation, if you have to apply the Nernst equation, so beta, first of all, you have to be very much clear with the data. Data must be in the reduction potential form. E naught value of zinc 2 plus to the zinc, that will be equal to minus 0.76 volt. And E naught value of the copper 2 plus to the copper, that will be of 0.34 volt. Okay. And after that, the E naught of cell, that would be equal to the E naught of cathode minus E naught of anode. And while solving this equation, you have to be very much clear कि both the datas must be in the form of, क्या होना चाहिए बेटा? Reduction potential. Potential. Okay, both must be in the form of the reduction potential. And in this question, what you have to do, इसका तो वैल्यू आपको अब लर्न भी हो गया होगा. कैथोड का वैल्यू है 0.34 वोल्ट माइनस एनोड का माइनस 0.76 वोल्ट. So this comes out to be 1.10 volt. This is a total data, 1.10 volt for the E naught of the cell. And this is for the E naught of the cell. And Nernst equation will be E cell is equal to E naught of cell minus 0.0591 by N log of product of the concentration of products. In the product section, you have to take the ions in the aqueous form, zinc 2 plus and the copper 2 plus. And here you have to substitute all the values and get the answer. तो इतना idea हम लोगों को हो चुका है. Now regarding the application of the Nernst equation, regarding the applications of the Nernst equation, so first application is the calculation of the EMF, जो हम last page पे करके आए हैं. That is calculation of the EMF of the solution. ठीक है, EMF of the cell, sorry. EMF of the cell calculate करने के लिए हम Nernst equation को use करते हैं. तो this is the first equation. First, you people can say the application. The second one is the calculation of what beta. The second one is the calculation of the ये कुछ questions ये बहुत important है इस chapter में. Calculation of the Kc. Kc को क्या बोलते हैं? What is the Kc? Equilibrium constant. The Kc is the equilibrium constant. Equilibrium constant की कैसे calculation करेंगे? जैसे हमारे पास है डेल्टा या E cell is equal to the E naught of cell minus 0.0591 by N into QC. आपको पता है ना, जब इस इक्वेशन को डिराइव किया था तो आई हैव स्टार्टेड दिस इक्वेशन फ्रॉम द डेल्टा जी. याद है डेल्टा? Yes, sir. डेल्टा जी Yes, ma'am. प्लस हाँ प्लस RT log of QC, उसमें डेल्टा जी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हमने किया था. अब हमारे पास वी हैव स्टार्टेड द थर्मोडायनामिक्स एंड वी नो दैट एट द इक्विलिब्रियम कौन सा थर्मोडायनामिकल वेरिएबल है जो जीरो होता है.
At the equilibrium, delta G naught is equal to 0. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. G naught is equal to 0, यानी कि minus n f E naught of cell is equal to 0. Just a minute. Minus n f E naught of cell is equal to 0. तो बेटा minus n f E naught of cell equal to 0 होता है, तो इसमें ना तो n 0 हो सकता है ना f 0 हो सकता है, तो क्या 0 हो जाएगा आपके पास? अच्छा just a minute. डेल्टा G 0 होता है ना, नॉट डेल्टा G नॉट. आप भी यस बोली जा रहे हो. डेल्टा G 0 होता है इक्विलिब्रियम पे. डेल्टा G नॉट तो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड वन तो कभी भी 0 नहीं होता. डेल्टा G की वैल्यू से आप कैलकुलेट करते हो इक्विलिब्रियम की कंडीशन. तो एन एफ ई सेल इज इक्वल टू 0. तो इसमें ये दोनों फैक्टर तो 0 हो सकते हैं, तो आपके पास क्या 0 होगा? ई सेल इज इक्वल टू 0. तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं. तो क्या करेंगे? यूजिंग equation 2 in equation 1. In equation 1. So beta, when you are going to use the equation number 2 in the equation number 1, तो E cell 0 हो जाएगा यहाँ पे, is equal to the E naught of cell minus 0.0591 by n. and यहाँ पे एक और फैक्टर आता है. what was that factor? log of QC. ठीक है. अच्छा आप मुझे ये बताओ, एक तो इक्विलिब्रियम में डेल्टा G 0 हो जाता है. डेल्टा G नो तो स्टैंडर्ड होता है ना, तो स्टैंडर्ड वाला तो नहीं 0 होता है. डेल्टा G अगर 0 है तो आपके पास इक्विलिब्रियम आता है. डेल्टा G लेस देन 0 है तो आपके पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आता है. याद है ये सब कुछ? डेल्टा G अगर Yes, ma'am. Yes, ma'am. नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आता है. तो एक तो इक्विलिब्रियम में डेल्टा G 0 होगा. दूसरा इक्विलिब्रियम जब होता है तो QC को आप क्या लिख सकते हो? KC है ना. QC कैन बी रिटन एज KC. तो माइनस 0.0591 by n एंड द लॉग ऑफ KC. ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. तो यू कैन जस्ट टेक दिस फैक्टर ओवर हियर. तो माइनस ऑफ E नॉट ऑफ सेल, this is equal to minus of 0.0591 by n and the log of KC. Okay, this is the equation. So minus and minus would be cancelled. So from this equation you can calculate the value of KC. Now what will be the value of log of KC? पहले ये बताओ. n इसके साथ multiply हो जाएगा, तो n into E naught of cell divided by 0.0591. This implies, अगर आपको KC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, now everybody knows that this is a log to the base KC. तो KC क्या आ जाएगा? 10 raised to power. ठीक है, log to the base 10 होता है ना ये. तो this comes out to be KC is equal to 10 raised to power n into E naught of cell divided by 0.0591. This is called as KC. KC is equal to 10 raised to power n E naught of cell 0.0591. In the another word आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एंटी लॉग ऑफ. देखो करते तो इसका एंटी लॉग ही सॉल्व है. अगर आपके पास एंटी लॉग कैलकुलेट करना होता है लाइक 5.67 का, ठीक है, ये तुम्हारा कुछ आ गया. ये मैं वैसे ही जर्नली डिस्कस कर रही हूँ. लॉग ऑफ x अगर 5.67 है तो x कितना होगा? एंटी लॉग ऑफ 5.67 होगा ना. Yes, ma'am. तो एंटी लॉग ऑफ 5.67 जब देखते हैं ना तो सिर्फ 0.67 का एंटी लॉग देखते हैं. ये जो 5 होता है ना आपका, ये 10 रेज़्ड टू पावर 5 इसमें आ जाता है. तो इसलिए मैंने सिर्फ ये वाला पोर्शन सॉल्व करके लिखा है 10 रेज़्ड टू पावर दिस वन. और ये आपको कॉन्सेप्ट तब लगवाना है मोस्ट ऑफ द टाइम. कई बार क्वेश्चन में वो एंटी लॉग कैलकुलेट ही नहीं करवाता. बस ये वाला जो पॉइंट से पहले वाला फैक्टर है इसको 10 रेज़्ड टू पावर मतलब समथिंग y इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 5. तो y की कैलकुलेशन वो नहीं पूछता है, वो 10 रेज़्ड टू पावर की कैलकुलेशन पूछता है. तो अगर ऐसा आपको आए तो आपको इसको यूज करना है, अदरवाइज आपको एंटी लॉग की पूरी कैलकुलेशन करनी है. बात समझ में आई? मैं इसका भी एक क्वेश्चन करवाऊंगी भी, क्योंकि ये सारा न्यूमेरिकल पोर्शन है एंड वी हैव टू सॉल्व इट. जैसे आपने डिफरेंट टाइप के सेल बनाए हैं ना, वैसे ही इसको भी करना है. तो इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? सेकंड एप्लीकेशन किसी को प्रॉब्लम नहीं है? No, Yes, ma'am. ma'am. चलो वेरी गुड. क्या क्या चेंज करोगे इक्विलिब्रियम पे? पहला तो QC को KC लिख दोगे और दूसरा E सेल को 0 कर दोगे. तो E सेल 0 हो गया. देखो दो चीजें 0 होती है इक्विलिब्रियम पे, एक डेल्टा G और एक E सेल. ठीक है, इससे आप KC की कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो. ये लाइन तो हमारी एक्स्ट्रा आ गई भाई, इसको तो हमें हटा देना है. चले आगे बेटा.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. थर्ड इक्वेशन है जो आपकी थर्ड एप्लीकेशन है. Do you remember the KSP? I told you about the KSP in the chemical equilibrium, moreover ionic equilibrium chapter. NCERT में वो chemical equilibrium के नाम से है, बट जेई नीट के सेक्शन में हम इसको अलग अलग पढ़ के पढ़ाते हैं, आयनिक एंड द केमिकल इक्विलिब्रियम. 11th वाले पोर्शन में हमने किया है ना ये. Yes, ma'am. नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ द KSP. अब KSP को किसको बोलते हैं? KSP इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. बेटा जी, दिस इज कॉल्ड एज अ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. Of sparingly soluble salt. क्या होता है sparingly soluble salt? मैम जो पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं हो, मतलब स्पेरिंगली आधा सॉल्युबल आधा सस्पेंशन. यानी कि एक तरह से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए कुछ अनआयोनाइज्ड सॉल्ट में और आयंस, है ना. जैसे मैंने आपको याद है लास्ट क्लास में एक AgCl का क्वेश्चन करवाया था, जो आप लोगों को लग रहा था कि मैडम ये तो रिडॉक्स ही नहीं है, बट बाद में हमने मेटल को ऐड करके. Yes, ma'am. ऐसे क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड वाला क्वेश्चन होगा, वॉट एवर जहाँ पे भी प्रेसिपिटेट आपको लगते हैं, वो जब देखो प्रेसिपिटेट बनते हैं तो इसका मतलब है कि वो सारा सॉल्ट नीचे बैठ गया, बहुत थोड़ा सा उसमें से डिसोसिएट हुआ. तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट भी एक्चुअली में एक इक्विलिब्रियम ही स्टैब्लिश हुआ होता है. इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने बाद में क्लास ज्वाइन करी है ना, तब तक हम ये लोग कर चुके थे ये टॉपिक. एट टाइम t इज इक्वल टू 0 में स्टार्टिंग में मान लो ये 1 था. 1 मैंने लिखा है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, कोई भी अमाउंट गिवन हो सकती है, मोल्स हो सकते हैं, कंसंट्रेशन हो सकती है, एनीथिंग. और ये जो दोनों प्रोडक्ट के आयन है ना, ये 0 0 थे. ये स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, एट द टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड एट द टाइम इज इक्वल टू t. एट टाइम t बराबर जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, एट द इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, तो जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तो जितनी इसकी सॉल्युबिलिटी होगी, मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये बहुत कम डिसॉल्व होता है, तो जितनी इसकी सॉल्युबिलिटी होगी ना उतने आयंस बनेंगे. तो हमने मान लिया कि S क्या है? S है सॉल्युबिलिटी. S is what? It is the solubility of the sparingly soluble salt. And that is called as a gram per liter. ठीक है, तो 1 में से एंड्स हम माइनस कर देंगे, जितनी इसकी सॉल्युबिलिटी होगी उतना ही तो वो डिसॉल्व होगा ना. तो 1 में से S माइनस कर दिया, ये दोनों आ गए आपके SS. ठीक है, अब एज इट इज वेरी लेस सॉल्युबल, then it means S is very 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 less than 1. तो 1 माइनस S को अप्रोक्सीमेटली हम क्या मान के चलेंगे? 1 ही मान के चलेंगे. तो इसका वैसे तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं वो ऐसा होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ AgCl. ठीक है, अब Ag और Cl, दिस इज S into S एंड दिस इज 1 माइनस S. ठीक है, अब बाकी आपको पता ही है कि मैंने पहले ही बताया कि जो आपका 1 माइनस S है दैट इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट और दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1. तो दिस कम्स आउट टू बी S². या आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर ये एक कांस्टेंट है ना, तो इस कांस्टेंट फैक्टर को इधर उठा के ले जाओ, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ AgCl, दैट इज अनदर कांस्टेंट, या आप इसको बोल सकते हो कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है, विच इज इक्वल टू 1, कुछ भी हो सकता है, एनी ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, तो आप इसको इधर उठा के ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये क्या बन जाएगा? K इंटू AgCl इज इक्वल टू KSP एंड KSP इज इक्वल टू S². ठीक है, दैट KSP इज इक्वल टू S² एंड दिस इम्प्लाइज S इज इक्वल टू रूट ऑफ KSP. S क्या हो गई आपके पास? सॉल्युबिलिटी. मतलब अगर आपको चेक करना है ना कि कितना सॉल्युबल है, तो सॉल्युबिलिटी होगी रूट ऑफ KSP, और सॉल्युबिलिटी का यूनिट मैंने पहले लिख दिया ग्राम पर लीटर. अब ये सारा काम है मैं करवा चुकी हूँ पहले,
आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में। अब इसमें नर्स्ट इक्वेशन का क्या सीन, अब आपको समझ में आ गया कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP होता है S into S, ऐसे के लिए इसको बोलते हैं AB टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। AB मींस यूनी पॉजिटिव एंड द यूनी नेगेटिव, 1 प्लस है 1 माइनस है। इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया S into S, S स्क्वायर, और सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ गई रूट ऑफ KSP। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखना जरा, अब बेटा इसी पे मुझे नास्ट इक्वेशन लगाना है। AgCl gives the Ag plus Cl negative. This is in the aqueous form. This is in the aqueous form again. तो इसके लिए नास्ट इक्वेशन लगाएंगे तो E is equal to E naught of cell माइनस ऑफ, अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है करना, क्योंकि जब तक आपको इसको मेटल को दोनों साइड ऐड करके इसका लेफ्ट और राइट नहीं निकालना आता ना, तब तक आप E नॉट ऑफ सेल भी नहीं निकाल सकते। आई होप एट दिस लेवल फ्रॉम द लास्ट क्लास यू नो कि इसमें कैथोड एनोड कैसे सेट करना है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, पता है ना अभी? Yes, ma'am. है ना, आपको मेटल ऐड करके जैसे करवाया था। तो E इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाई N लॉग ऑफ, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आएगा और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये इसको सॉलिड मान लो और इसको बोल लो कि प्रैक्टिकली कांस्टेंट है, जैसे हमने पिछली इक्वेशन में लिखा ना 1 माइनस S इज इक्वल टू 1, ये प्रैक्टिकली कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे। तो E इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल। ठीक है, अभी फिर से वही बात आ गई कि एट द इक्विलिब्रियम क्या जीरो होगा भाई, E सेल इज इक्वल टू 0 पहली बात, और यहाँ पे जो आपका ये है फैक्टर मतलब Ag प्लस और Cl नेगेटिव, ये अब मुझे दोबारा बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस इज सिंपली इक्वल टू KSP, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, KSP है। तो E सेल 0 हो गया आपका, is equal to E naught of cell minus 0.0591 by N log of this comes out to be KSP, ये KSP के बराबर आ गया, इसको इधर ले आओ, minus of E naught of cell minus of 0.0591 by N log of KSP। तो इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही जाएगी जैसे आपने अभी कैलकुलेट किया K, तो N into E naught of cell divided by 0.0591 is equal to log to the base 10 KSP। ठीक है, तो इस पे KSP कैसे जाएगा, KSP from this equation can be calculated as 10 raised to power N E naught of cell divided by 0.0591। Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बताओ कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो आपका है वो ज्यादा डिसॉल्व होता है, कम डिसॉल्व होता है, उसके कैसे आयंस बचते हैं, वेरी लेस सॉल्युबल होता है ना, तो इसलिए जो 10 का आंसर है ना हमेशा इसमें नेगेटिव आता है, लेस वैल्यू आती है मतलब। तो कई बार आपको पेपर में जब आप सॉल्व करोगे ना इसको, देन यू विल गेट टू नो कि ये जो आपके आंसर हैं ये मतलब जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें जो मिनिमम वाला ऑप्शन है। ओके, बाकी अगर पूरा क्वेश्चन पूछा हुआ है तो मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, फिर एंटी लॉग भी देखना पड़ेगा। तो ये सेकंड एप्लीकेशन हो गई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए, फर्स्ट हो गई आपकी इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, एंड देन इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, नाउ द फोर्थ इज calculation of pH of the solution। pH of the solution कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो pH की कैलकुलेशन के लिए आपको नास्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी हाफ सेल पे। ठीक है, वो भी मेथड सेम ही है। लेट अस सपोज मेरे पास इक्वेशन थी H++1 इलेक्ट्रॉन गिव्स द हाफ ऑफ हाइड्रोजन। H+ किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। बाकी इस इक्वेशन को आप जानते हो, कंसिडर रिडक्शन या कंसिडर द जर्नल इक्वेशन फॉर द SHE। SHE जानते हैं ना सारे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बताया था आपको या नहीं बताया अभी? Yes, ma'am. Ma'am, Yes, बताया ma'am. था। Good, good. Consider the standard hydrogen electrode
मैंने उसकी रिडक्शन वाली इक्वेशन ले ली है, क्योंकि हमें बेसिकली रिडक्शन ही लेना है। देखो एक्वस में कंसंट्रेशन ना उसकी कोई भी दी हो सकती है, लेट अस से 0.01 मोलर है, ये वेरी कर सकती है, ये तो मैंने अपने से लिखना है। तो आपको जो जो इक्वेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू है दैट यू हैव टू यूज। नाउ अप्लाइंग द नास्ट इक्वेशन ऑन इट। Applying the Nast equation on the this, या on it लिख लो। अप्लाइंग द नास्ट इक्वेशन ऑन इट, तो जब आप इस पे नास्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे, यू नो ना वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन Zero. this half of H2, this comes out to be 0. So E cell is equal to E naught of cell minus 0.0591 by N into log of QC। ये इक्वेशन है। पहले आप कैसे लिखोगे इसको, E of H plus to half of hydrogen, this is equal to E naught of H plus to half of hydrogen माइनस 0.0591 बाई कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है बेटा, 1। अगर आपको इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। लॉग ऑफ क्यूसी, क्यूसी क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब आप बताओ, प्रोडक्ट में मेरे पास ना तो सॉलिड है जिसको मैं यूनिटी ले पाऊं, प्रोडक्ट में मेरे पास हाइड्रोजन है, तो जब गैसियस फॉर्म होती है तो इसका प्रेशर ले लेते हैं, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, और रेज टू पावर वही आ जाएगी 1/2, और नीचे आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये एक ऐसा कांस्टेंट है, बाद में तो ये 1 नहीं हो जाएगा क्योंकि इसका स्टैंडर्ड कंडीशंस में 1 ही वैल्यू होती है, बट फ्यूचर में आपको ध्यान रहे कि यहाँ पे प्रेशर लेना, इसलिए मैंने लिख दिया। अब ये वैल्यू तो 0 दे रखी है बेटा, माइनस 0.0591 बाय 1 लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन स्टैंडर्ड कंडीशन में, मान लो कि उसने दे रखा है 1 बार। ठीक है, अगर कुछ डिफरेंट है तो आपको यूज करना पड़ेगा। तो 1/H प्लस आ गया। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, माइनस 0.0591 लॉग ऑफ H प्लस की पावर माइनस ऑफ 1, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब इससे आगे अलग कलर ले लेते हैं, या तो दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस वैसे तो प्लस हो जाएगा, 0.0591 लॉग ऑफ H प्लस, पर हमें जब बनानी है ना इसको pH बनाना है, तो वी हैव टू स्प्लिट दिस प्लस इनटू माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो माइनस ऑफ 0.0591 माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस। ठीक है, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस और माइनस ऑफ 0.0591 में से ये वाली जो वैल्यू है, इतना पोर्शन आपका क्या आता है, पीएच आता है। सबको पता है ना, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस पीएच होता है। ठीक है, Yes, ma'am. Yes. ये वाला पोर्शन पीएच जाएगा। तो आपके पास फिर रिजल्ट क्या आ गया इसका, E of H plus to half of hydrogen is equal to minus of 0.0591 क्या था उसके बाद, लॉग, अच्छा माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस, तो सारा पीएच आ गया, सिंपल पीएच। अब आपके पास अगर क्वेश्चन में पीएच दिया हुआ है, जैसे आपको इस क्वेश्चन में देखो, अगर तो ये दिया हुआ है तो आप पीएच कैलकुलेट कर लो, अगर पीएच दिया हुआ है तो ये कैलकुलेट कर लो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। अब जैसे इस क्वेश्चन में, चलो मैं लिख देती हूँ, इसका भी एक्सप्रेशन है ना, पीएच क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ EH हाफ ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 0.0591, ये तो पीएच की कैलकुलेशन आ गई आपकी। ठीक है, और इस क्वेश्चन में H प्लस की कंसंट्रेशन मैंने दे रखी है 0.01, तो H प्लस की कंसंट्रेशन है इस क्वेश्चन में 0.01, जिसको कि आप 10⁻⁻2 लिख सकते हो मोलर। तो बेटा फिर इसमें तो आप आराम से pH कैलकुलेट कर सकते हो, pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस की जगह पे 10⁻⁻2, this comes out to be 2. So this equation you people can use over here. This is equation number 3. This is equation number 4. Using 4 and 3.
using 4 in 3, तो E of H plus और half of hydrogen is equal to minus 0.0591 multiplied by pH. pH कितनी आ गई आपकी 2, जो भी आपके पास pH की वैल्यू, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इज दैट क्लियर? आपको दोनों तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। Yes, ma'am. तो ये हो गई एप्लीकेशंस ऑफ नास्ट इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से नास्ट इक्वेशन अब आपको हर तरह से अप्लाई करनी आ गई है। अगर पेपर में उसने क्यूसी का कैलकुलेशन दिया सिंपल, मैं इसको ना एक बार प्रीवियस स्लाइड करके आपको बता देती हूँ। जो पहले वाली एप्लीकेशन है ना, पहले वाली एप्लीकेशन यही है जो इससे भी पीछे क्वेश्चन किया ना, ये वाली, जिसमें आपको कुछ नहीं करना। ई नॉट की वैल्यू 1.10 माइनस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ इनकी जो भी वैल्यू दी हुई है, वॉट एवर, उसको मैं क्यूसी लिख देती हूँ। क्यूसी पुट करो और आंसर निकालो। ये तो है फर्स्ट एप्लीकेशन। या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में कि सारा डाटा दिया होगा, आप उसमें से ईएमएफ कैलकुलेट कर लेना। और ईएमएफ कैलकुलेट करते हुए कोई भी बच्चा ऐसी मिस्टेक नहीं करेगा। आज मैं ऑफलाइन क्लास ले रही थी तो कुछ बच्चों ने ये मिस्टेक करी है। उन्होंने क्या किया कि जब इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है ना 2 या 3 से इलेक्ट्रॉन को बैलेंस आउट करने के लिए, तो जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आ जाते हैं ना, उसे क्यूसी में रेज टू पावर नहीं बनाए, तो उससे आपका आंसर बिल्कुल गलत आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जैसे कॉपर और सिल्वर की इक्वेशन में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना सिल्वर को, यस मैम। तो आपको जब यूसी की वैल्यू लिखनी है तो एजी प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर भी तो करोगे ना, क्योंकि आपने जो आपकी सेल इक्वेशन आ रही है ना, बिल्कुल वैसे ही क्यूसी लिखना है। अगर सेल इक्वेशन में किसी के साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया हुआ है तो वो उसकी रेज टू पावर जाएगा। और अगर आपने सेल इक्वेशन ही गलत बना दी, फिर आपका क्वेश्चन कभी भी नास्ट इक्वेशन का नहीं हो सकता। और पेपर में ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड तो नहीं, खैर मल्टीप्लाई से ही काम हो जाता है। सेकंड है केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी। वो आपको समझा दिया है कि इक्विलिब्रियम पे 2 कंडीशंस होती हैं, एक तो ई सेल 0 होता है और एक डेल्टा जी 0 होता है। तो इसकी हेल्प से आप केसी निकाल सकते हो। ठीक है। थर्ड, अगर तुम्हें पेपर में आ गया इस तरह का, इस तरह में बाकी तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि रिएक्टेंट को नहीं लेना है इसमें, और प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज केएसपी। अगर तो यहाँ तक पहुंच गए तुम, तो केएसपी तुम आराम से निकाल लोगे। और कई बार एक स्टेप इससे और आगे जाता है कि केएसपी होता है, जैसे इस क्वेश्चन में एस इंटू एस, वो कहता है एस निकाल दो, तो एस हो जाएगा रूट ऑफ केएसपी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस का यूनिट क्या था, बार बार मैं क्यों लिख रही हूँ, ग्राम पर लीटर। बट अगर वो आपसे पूछ लेगा कंसंट्रेशन ऑफ, निकाल दो कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस, तो तुम ऐसा चल पड़ोगे कि मैडम ने तो बताया था कि, रुको कहाँ गया, कि मैडम ने तो बताया था ये एस एस है, हमने उसको एस का कैलकुलेशन भी करके दिया, तब भी हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। एस कंसंट्रेशन नहीं है, एस है सॉल्युबिलिटी। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। ठीक है, क्या यूनिट होता है, मोल पर लीटर। तुमने क्या कैलकुलेट किया, ग्राम पर लीटर, तो तुम्हारा आंसर सही थोड़ा आएगा। तो पेपर में मेरी बात याद रखना, ये बात, अगर केएसपी से भी एक स्टेप आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है और आपने कैलकुलेट कर दिया वहां पे सॉल्युबिलिटी, और आप सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ हमने तो एक स्टेप और कर दिया पेपर में, सॉल्युबिलिटी के आंसर को कंसंट्रेशन लिख दिया, सॉल्युबिलिटी पूछे तो वो ग्राम पर लीटर में पूछेगा। बट अगर वो क्या पूछे, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है, सॉल्युबिलिटी इसकी लिखी हुई है उस जगह पे एस एस इसको लिखा हुआ है, पर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होता है। अब ग्राम पर लीटर को अगर मोल पर लीटर से करना है कन्वर्जन, तो इसको मोलर मास से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा ना एस, एस को तुम किससे डिवाइड कर दोगे, मोलर मास से, तब आपका आंसर किस में बदल जाएगा, मोल पर लीटर में। फिर ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक यहाँ पे मिस्टेक करते हैं बच्चे, और दूसरी मिस्टेक कहाँ पे होती है कि बच्चों को ई नॉट ऑफ सेल ही नहीं बनाना आता, कैथोड एनोड। वो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया था कि Ag टू Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये ई नॉट ऑफ कैथोड वाला एनोड वाला पोर्शन आएगा, और AgCl टू Ag और Cl नेगेटिव, ये आपका कौन सा पोर्शन आएगा, एनोड वाला, मेटल को दोनों साइड ऐड करके। तो बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमने ये भी पहचान लिया अच्छे से, और ये भी पहचान लिया कि सॉल्युबिलिटी से कंसंट्रेशन कैसे निकालनी है, फिर ये क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होती।
बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो मैम। No, ma'am. ये हो गई 3 एप्लीकेशन। फोर्थ इक्वेशन है या तो पीएच निकलवा ले या एच प्लस निकलवा ले। उसके लिए देखो पूरा ज्ञान तो तुम्हें दे दिया कि इक्वेशन तो बनती है -0.0591 इंटू पीएच। तो अगर आपके पास पीएच निकालने को आ जाए तो ऐसे कर देना, अगर आपके पास ई निकालने को आ जाए तो पीएच की वैल्यू वहां पे रख देना। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। बट अगर पीएच से एच प्लस निकाल ले तो वो भी आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस। तो ऑल दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द नास्ट इक्वेशन। बाकी क्वेश्चन मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रैक्टिस करनी है, हवा में नहीं जाने चाहिए क्वेश्चन कि हमें फॉर्मूले आते हैं, इट इज ऑल डन। फॉर्मूले से कुछ नहीं होगा। यस दिस इज ओके, यस 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 yes this is okay कि you know the formula, this is a good thing in the physical chemistry, but if you don't have a you can say accuracy in your calculations, then again you will lose a mark. और ये जो accuracy in the calculation है ये आपको प्रैक्टिस से आएगी। हम लोग आपको फॉर्मूला बता देंगे, एवरीथिंग विल डील, ठीक है, पर आपको प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी। एक दो क्वेश्चन तो हम भी करा देंगे, बट इस कैटेगरी के कितने क्वेश्चन सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि मेरा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं कितना डेविएट कर रहा हूँ आंसर से। अब नेक्स्ट है क्या कहते हैं जी उसको, दूसरा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताना था ना बच्चा। Yes, ma'am. यस मैम। केमिकल सीरीज सभी बच्चे पार्टिसिपेट किया करो क्लास में, एंड इट इज बेटर कि यू विल बी विद पेन एंड कॉपी ऑन, तब समझ में आएगा। रखते हो कॉपी पेन साथ में? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? जिन बच्चों ने एनसीईआरटी को खोला है, पढ़ा है, उन्हें तो इसका ज्ञान भी होगा। ठीक है, वैसे हमने पहले भी क्लास में डिस्कशन किया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक आपके पास है सीरीज बनी हुई है जिसमें हर एक मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है। तो मैडम वो सीरीज हमें याद करनी है? नहीं, वैसा कोई क्वेश्चन नहीं आपसे पूछा जाएगा जिसमें से वो पूछ लेगा कि सीरीज में बताओ कौन कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर पूछ भी लिया मान लो, तो वो आपका नॉलेज पीरियोडिसिटी के बेस पे होगा कि किसकी रिडक्शन किसकी ऑक्सीडेशन होगी, मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है। तो आपको इसमें क्रैम करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, डाटा आपको दिया हुआ आता है पेपर में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? The arrangement of elements in the elements लिख दिया है मैंने, metals भी लिख सकते हो, in the increasing reduction potential values. The arrangement of the elements in the increasing reduction potential values is called as electrochemical series. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल। अब अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल है तो कैन आई से दिस थिंग ई नॉट ऑफ एम एन प्लस टू एम। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल जो टॉप वाली मेटल्स हैं, टॉप मेटल्स का क्या होगा? नेगेटिव, और ई नॉट ऑफ एच प्लस टू हाफ ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जो सेंटर में है दैट इज जीरो। ठीक है, ये सेंटर में है जीरो, एंड देन ई नॉट ऑफ एम एन डैश, प्लस में ही लिखे इसको भी, एम एन प्लस टू एम दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बॉटम मेटल्स। ठीक है, तो जो टॉप वाली मेटल्स हैं उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है, सेंटर में जीरो होता है, बॉटम वाली मेटल्स की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो दिस इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यू मस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी एंड हैव अ लुक अपॉन दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको ये क्राइटेरिया समझ में आ गया है कैसे रखी हुई हैं, तो आपको वर्किंग मेथड भी आता है जो मैंने आपको सिखाया है कि सेल कैसे बनाना है, हाफ सेल इक्वेशन, कंप्लीट सेल इक्वेशंस कैसे रखनी है। So I hope you people can give the answer to all the questions that are called as applications of the electrochemical series.
तो रिगार्डिंग द एप्लीकेशंस ऑफ द electrochemical series, first application of the electrochemical series is to calculate, चलो और छोटे से स्टार्ट करते हैं फिर आएंगे, to determine which will act as which metal will act as the reducing agent oblique oxidizing agent. चलो आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर. नाउ यू नो द वर्किंग मेथड. अब बताओ कैसे करेंगे. मैम जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो उतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट. ओके देखो थोड़ा सा ना हमें विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन बताना है. ठीक है आपकी बात. जो आपका ई नॉट ऑफ एम एन प्लस प्लीज बी ऑन म्यूट एवरीबडी. I want everybody to participate in the classroom. KCl alkyl main while KCl is isocyanate is the main product. This is not the good thing. I told you many times to be on mute. Otherwise तो फिर मैं भी interact नहीं कर पाऊंगी. मुझे mute करना पड़ता है. E naught of m n plus to m. तो बेटा जो आपका standard reduction potential है. This is a metal A. This is the metal B. E naught of m n plus 2m. तो जो आपकी A मेटल है ये है आपकी टॉप पे या हाइड्रोजन के ऊपर, ये है हाइड्रोजन के बिलो. तो जो आपकी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर हैं जिनकी वैल्यू नेगेटिव है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है. यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है. तो दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल, लेट इट बी. तो जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई है, दिस इज अ हाई वैल्यू ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल. और वर्किंग मेथड से हमने क्या सीखा है, हाई वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल जाएगा कैथोड पे और उसकी होएगी रिडक्शन. तो जिसकी रिडक्शन होती है वो क्या एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यहाँ पे है इसके कंपैरिजन में A एंड B, और ये आपके पास सीरीज ही समझ लो. दिस वॉट एवर आई हैव रिटन इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ओनली. दिस इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ओनली. तो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पे वैल्यू है लो रिडक्शन पोटेंशियल. तो वेन एवर देर इज अ लो रिडक्शन पोटेंशियल वो कहाँ पे जाएगा, एनोड पे जाएगा. तो एनोड पे जाएगा तो क्या होगा, वहां पे रिडक्शन होगा. और अगर वहां पे रिडक्शन होगा तो वो क्या एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट. तो वन लाइन आंसर तो आपका ठीक है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी नेगेटिव होगी वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो आपका जस्ट अ मिनट, मैंने इसको रिडक्शन लिख दिया है. एनोड पे जाएगा तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी और वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा. तो वन लाइन आंसर इज करेक्ट. जिसकी जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की, मतलब उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी कम है और वो क्या एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन होगी. बट इफ यू आर गिविंग इट एज अ एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये सही है. आपको एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. डाटा दिया होगा आपको, सबको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना है. जिसका जितना नेगेटिव वैल्यू है वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब वो ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि एनोड एक्ट करेगा. अदरवाइज आप क्या लिख सकते हो कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सी स्पीशीज होंगी, जो हैं टॉप पोजीशंस पे. टॉप या इसके लिए वर्ड यूज करते हो अबव द हाइड्रोजन. ठीक है.
और दोनों में से, मतलब अगर दोनों ही हाइड्रोजन के बिलो हुए तो ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं होगी। तो वहां पे आप सिंपली ले सकते हो कि ऊपर वाला रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसलिए मैंने या तो टॉप लिख दिया है या अबव द हाइड्रोजन लिख दिया है। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो दोनों में से जो बिलो होगा इन द सीरीज, टॉप और द बिलो इन सीरीज, ऑब्लिक बिलो द हाइड्रोजन। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख के हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, हम सीधा पता लगा सकते हैं कि जो ऊपर वाली मेटल है, हाइड्रोजन के ऊपर वाली मेटल है या दोनों हाइड्रोजन के ऊपर है, तो उन दोनों में से जिसकी पोजीशन टॉप पे है, ऊपर है, वो एक्ट करेगी आपका बेटा रिड्यूसिंग एजेंट, और डाउनवर्ड वाली मेटल क्या एक्ट करेगी आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दिस इज अ फर्स्ट एप्लीकेशन कि हमने ये एटलीस्ट डिसाइड कर लिया कि कैथोड पे कौन जाएगा और एनोड पे कौन जाएगा। ठीक है, या रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या होगी इसकी, सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन है टू डिटरमिन the feasibility of the reaction, regarding to determine the feasibility of the reaction. You know this now, how you are going to determine whether the reaction is feasible or not, yes or no? Yes, ma'am. Okay, so how you are going to check the feasibility of the reaction? With the help of E naught of cell. So E naught of cell is equal to E naught of cathode minus E naught of anode. ठीक है बेटा, और ये दोनों डाटा मैं बार बार ये लिख रही हूँ कि कोई भी बच्चा पेपर में गलत ना करे। ये दोनों डाटा रिडक्शन पोटेंशियल में होने चाहिए। तो अगर ये आंसर आपका क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, फिजिबल। Feasible. And if this reaction comes out to be, this data comes out to be negative, तो this reaction is not feasible। मतलब जो आपका सेल है वो आपको EMF प्रोड्यूस करके नहीं देगा, आपका सेल काम नहीं करेगा। अब इसको शॉर्टकट में लो, अगर आपने सेल वो बनाया है जिसमें जो आपकी मेटल बिलो इन द सीरीज है, उसको आप क्या एक्ट करवा रहे हो, कैथोड। और जो आपकी मेटल अबव इन द सीरीज है, ठीक है, इसको हाइड्रोजन से अबव भी ले सकते हो या सिंपली अबव इन द सीरीज, उसको आप क्या एक्ट करवा रहे हो, एनोड। तब तो आपका सेल फिजिबल है। मतलब तुम्हें पेपर में आ गया ऐसे 4 सीरीज में एलिमेंट है ABCD। ठीक है, तो अगर B का कैथोड बनाओगे और C का एनोड बनाओगे तो मुझे बताओ रिएक्शन फिजिबल होगा? No, ma'am. तो दिस रिएक्शन इज Not feasible. नॉट फिजिबल। अब मैं क्या करती हूँ, एक व्हाइट कलर का सेल बना देते हैं, A और D। A को बनाया एनोड, D को बनाया कैथोड। तो अगर A को एनोड बनाया, D को कैथोड बनाया, तो ये रिएक्शन क्या आ गया आपका, Feasible. फिजिबल। फिजिबल। तो यानी कि वैसे तो हमें पता है डाटा से कैसे चेक करना है, पर डाटा भी कहाँ से आया, सीरीज से ही तो आया है। तो सीरीज में देख के अगर जो एलिमेंट अबव है उसको एनोड बनाएंगे और बिलो वाले को कैथोड बनाएंगे तो रिएक्शन फिजिबल आ जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट पिछले पॉइंट से ही मिलता जुलता है, बस फिजिबिलिटी अलग अलग है। थर्ड पॉइंट, कंपैरिजन ऑफ EMF of the two cells। हाँ बेटा, कैसे कंपेयर करेंगे EMF 2 सेल की? मैं यहाँ पे नंबर लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसमें हमने ABCDEFGHI और J ऐसे करके कुछ एलिमेंट ले लिए हाइपोथेटिकल। अब मैंने बनाया सेल 1 मैंने बनाया D एंड G सेल। ठीक है, जिसमें मैंने D को रखा एनोड पे और G को रखा कैथोड पे। एक मैंने बनाया सेल 2, और ये हमारी क्या है, हाइपोथेटिकल
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, और सेल 2 मैंने ऐसे बनाया जिसमें एक हमने ले लिया B और दूसरा हमने ले लिया I। ठीक है, ये वाला सेल बनाया और इसमें भी मैंने B को रखा एनोड और I को रखा कैथोड। पहले तो ये बताओ कि दोनों सेल बनेंगे क्या ये दोनों के रिएक्शन फिजिबल होंगे, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. तो दोनों के रिएक्शन फिजिबल है। अब तुम्हें बिना डाटा जाने ही पता है, कोई कैथोड एनोड डिसाइड नहीं किया तुमने, बस सीधा पता है कि ऊपर वाली को एनोड रखना है, नीचे वाले को कैथोड रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि ई नॉट ऑफ सेल किसका ज्यादा आएगा, किसमें ईएमएफ या करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा? ई नॉट ऑफ सेल 2 और ई नॉट ऑफ सेल 1, किसका ईएमएफ का आंसर ज्यादा आएगा? अरे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 से लेके 10 तक लिख लिया, तुम वैसे ही माइनस करके देख लो। पहला सेल 1 है जो डी और जी का बना है। ठीक है, डी और जी कहाँ गए? तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल 7 है और अच्छा डी और जी का है, ये डी और जी, इसका 7 है, इसका 4 है, तो 7 - 4 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। Yes, ma'am. रिडक्शन पोटेंशियल ही तो है। दूसरा आपका आई और इसका बना है, तो ये 9 - 2 कितना आ जाएगा? 7। तो 3 बड़ा है या 7 बड़ा है? 7. ऐसी बात है, सेल 2 का ज्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर आपको बेस्ट सेल बनाना है, ज्यादा करंट ऑब्टेन करना है, ठीक है, मोर ईएमएफ यू वांट, तो एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर दैट आपको वो दो मेटल्स पिक करनी है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाइड सेपरेटेड है, मतलब जिसका सेपरेशन बहुत ज्यादा है, जिसमें गैप बहुत ज्यादा है। बट ये चूज करने से पहले आपको ये जरूर डिसाइड करना है कि एक जो अबव वाली है उसको एनोड पे रखा जाए और बिलो वाली को कैथोड पे रखा जाए। ठीक है, तो इस केस में आप क्या लिखोगे कि द सेल which is formed by taking two metals having large separation in the electrochemical series. Large separation in the electrochemical series. Feasibility but check करनी है। Yield a more EMF, yield more current लिखो सीधा, तो yield more current, उससे ज्यादा करंट मिलता है। तो is that clear? Comparison of the EMF of the two cells कैसे करते हैं? Yes, Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट है बेटा फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दैट इज द लास्ट एप्लीकेशन, दैट इज योर ये इंपॉर्टेंट है सब में से, बाकी तो बहुत इजी है, आप वैसे भी कर सकते हो डाटा देख के। दैट इज यू कैन कॉल इट एज टू डिटरमिन whether the metal will liberate hydrogen or not, whether the metal will liberate the hydrogen or not। ये कैलकुलेट करना कि क्या आपकी मेटल हाइड्रोजन लिबरेट करेगी या नहीं करेगी। अब हाइड्रोजन का लिबरेशन कैसे होता है, लेट्स चेक इट आउट। जो डाटा आपको याद है उसी से प्रोसीड कर लो। ई नॉट ऑफ कॉपर 2+ और कॉपर का डाटा तुम्हें होगा लर्न 0.34 वोल्ट होता है। इसका बना लो हाइड्रोजन के साथ सेल, H+ + half of hydrogen is equal to 0. E naught of zinc 2+ to zinc is equal to minus of 0.76 volt, and E naught of H+ to half of H2 is equal to 0. ठीक है, आप इन दोनों का सेल बनाया, तो सेल बनाने में पहले आप चेक करो जो पॉइंट्स चेक करते हो वर्किंग मेथड। ठीक है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है एंड दिस विल गो टू द कैथोड
This will go to the anode. This will go to the cathode. This will go to the anode. ठीक है, तो जी अगर ये कैथोड पे जाएगा, ये एनोड पे जाएगा, तो पहले लिख लेते हैं इसके रिएक्शन. रिडक्शन हाफ सेल, copper 2 plus 2 electrons gives copper in the solid state. और oxidation half cell, H2 half ले लेते हैं, gives the H plus 1 electron. This is electron को तो लिखेंगे. This is aqueous and this is gas. ठीक है, बाकी आप चाहो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी copper 2 plus हाइड्रोजन that is in the gaseous state, that is in the aqueous form, that gives us the copper in the solid state plus 2 H plus in the aqueous form. ये इक्वेशन आ जाएगी. Yes. Yes, ma'am. ये क्या हाइड्रोजन लिबरेशन हुआ? No, ma'am. नो मैम. वाई नो मैम? क्योंकि हाइड्रोजन तो बच्चा यूटिलाइज हो रही है. हाइड्रोजन Yes. लिबरेशन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन किस साइड पे होनी चाहिए? राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए. यानी कि ये सेल क्या है? नो H2 लिबरेशन. इसमें हाइड्रोजन लिबरेशन नहीं हो रही. ठीक है, अब आ जाओ दूसरे सेल पे. अच्छा जी, देखो फिर दूसरे वाले सेल पे इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो ये तो बेटा कैथोड पे जाएगा, है ना. तो पहले फिर रिडक्शन हाफ सेल ही लिख लो. तो रिडक्शन हाफ सेल हो जाएगा अपोजिट. H plus गेन 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स द हाफ ऑफ हाइड्रोजन. इसको 2 से मल्टीप्लाई करना ही है तो मैं पहले ही कर देती हूँ. ये हो गया एक्वस फॉर्म में, ये आपका हाइड्रोजन हो गया. और ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होगा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा रिवर्स, यानी कि जिंक gives the zinc 2 plus 2 इलेक्ट्रॉन. तो ये हो गया एक्वस. तो ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो गए, तो ये बन गया 2H plus in the aqueous form plus Zn gives the hydrogen in the gaseous form plus Zn2 plus in the aqueous form. ठीक है, तो ये बन गई आपके पास इक्वेशन. अब मुझे बताना जरा क्या यहाँ पे हाइड्रोजन लिबरेशन हो रहा है? Yes, ma'am. ये देखो, ये जिसको इतना सर्कल कर दिया, तो दैट मीन्स H2 लिबरेट इन दिस सेल. तो कुछ आइडिया हुआ? अब तो इतना मुझे इतना कुछ लिखना पड़ा. अब इससे तुम ऐसा इन्फ्रेंस बना लो कि तुम्हें पेपर में बिना सॉल्व किए पता लग जाए. यहाँ पे हाइड्रोजन का तो बच्चा सेट है, हाइड्रोजन का तो तुम्हें पता है 0 ही है तो बाकियों का भी फिक्स ही है, बट तुम्हें प्लस माइनस देख के पता लग जाएगा. जिस केस में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाइड्रोजन से कम है मतलब नेगेटिव है, वहां पे तो हाइड्रोजन लिबरेशन होता है, और जहां पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है वहां पे हाइड्रोजन लिबरेशन नहीं होता. तो इसकी 1 लाइन स्टेटमेंट दे देते हैं. ऑल दोज मेटल्स which have क्या? negative value of reduction potential will liberate हाइड्रोजन. ठीक है, तो वो वाली मेटल्स जहां पे नेगेटिव वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल की, वहां पे हाइड्रोजन लिबरेशन होता है. बाकी किसी भी जगह पे कोई भी हाइड्रोजन लिबरेशन नहीं होता है. तो इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. मैम प्रीवियस स्लाइड को करना. अच्छा, देख लो. डन मैम. ठीक है. अच्छा, इसमें ना कंडक्टेंस वाले टॉपिक में देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो कंप्लीट है यहाँ तक, मतलब 2 ही टॉपिक बचे थे इसमें से. वन इज द एप्लीकेशन ऑफ द नास्ट इक्वेशन, अदर इज द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब इसमें ना जब मैंने आपको फर्स्ट डे पढ़ाया था, फर्स्ट डे था क्लास का, तो कंडक्टेंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, कंडक्टेंस पढ़ाया था. तो उसमें ना एक फॉर्मूला इक्विलिब्रियम वाला भी यूज होता है. पता नहीं आपको पता है या नहीं पता है, एक बार देख के बताना जरा मुझे.
मान लो तुम्हें ऐसे आ गया कोई क्वेश्चन कि डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में पूछ लिया, तो देखो कंडक्टेंस में मैंने एक फैक्टर आपको पढ़ाया था अल्फा। अल्फा के बारे में क्या बोलते थे हम? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाँ, तो एक थी एप्लीकेशन ऑफ कॉलरश लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ कॉलरश लॉ से आप लिखते थे ना लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू अल्फा, है ना? तो ये होगा गिवन इन द न्यूमेरिकल, और ये आपको कहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा? कॉलरश लॉ से। ठीक है, तो कॉलरश लॉ से वही प्लस माइनस करके जैसे आपको सिखाया, आपने लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट किया और यहाँ पे इसके साथ डिवीजन में रख दिया तो अल्फा की वैल्यू आ गई। इज दैट क्लियर ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब कई बार क्या आता है ना कि वो के ए की वैल्यू पूछ लेता है, तो के ए आपको जो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में सीखा है ना वैसे ही लिखना है। तो के ए किसको बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड। किसी एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? क्या थी इसकी वैल्यू? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। अगर तो याद है तो ठीक है, नहीं तो याद करो कि आपको कुछ ऐसे पढ़ाया था, HA gives H प्लस प्लस A नेगेटिव, तो एट टाइम T इज इक्वल टू 0 में ये C था, 0 था। एट टाइम इज इक्वल टू T, तो ये C इंटू 1 - अल्फा हो गया, ये C अल्फा हो गया, ये C अल्फा हो गया। तो के ए की वैल्यू आ गई H प्लस A नेगेटिव डिवाइडेड बाय द HA। अब इसको देखो, C अल्फा इंटू सी अल्फा, C इंटू 1 - अल्फा, C से C cancel, C alpha square upon 1 - alpha, that is the Ka. So this is how the Ka can be calculated. ठीक है, यस मैम। तो इस तरह से Ka की कैलकुलेशन होती है। तो अब वैसे तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में नीट के पर्सपेक्टिव में ना जो आपका टॉपिक है फेराडेज लॉ, फेराडेज लॉ का सिर्फ एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट बोला है सीबीएसई की उसमें सिलेबस में, और यहाँ पे भी उसी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, बट उसका जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना फैराडे के सेकंड लॉ से, जिसमें हमें कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ किस इलेक्ट्रोड पे, उसकी कैलकुलेशन। बस वो एक क्वेश्चन पेंडिंग है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी फैराडे वाला, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वो इलेक्ट्रोलिसिस से है। उसके बाद दिस चैप्टर इज कंप्लीट, और इस चैप्टर के बाद हम पहले सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन विल वाइंड अप इन 2 days ओनली बस, और उसके बाद फिर से ऑर्गेनिक पे आएंगे, ऑर्गेनिक ऑफ 12th, क्योंकि वो अभी आपको एग्जाम में भी आना होगा। इज दैट क्लियर बेटा? ये कर लोगे ना? ये 2 फॉर्मूले उसी लिस्ट में नोट कर लेना। एक अल्फा की कैलकुलेशन, ये तो मैंने बताया आपको, ये ना इक्विलिब्रियम का है जो यहाँ पे यूज होता है, जिसमें से अल्फा यहाँ से कैलकुलेट करो और यहाँ पे रख दो। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो 1 - अल्फा अप्रोक्सीमेटली 1 होगा। डन? यस मैम। मैम। यस मैम। चलो अब कुछ क्वेश्चन इसके पोल के ले लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए चैप्टर है क्या। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से, तब आएगा।
Everybody has to participate, otherwise how will you get to know कि हमें आ रहा है नहीं आ रहा. कंफ्यूजन ही है. 5, 9, 10, 7 ऑलमोस्ट सेम है ओपिनियन. कैसे चेक करेंगे भाई? पहले तो कितने बच्चों को ये पता है कि डिस्प्रपोर्शनेट क्या होता है? मैम जिसमें सेम स्पीशीज रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज होती है. यस, जिसमें सेम स्पीशीज रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होगी, दैट इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेट. और वो फिजिबल भी होना चाहिए, है ना? तो करके देखें हमारे पास क्या है. मैं अभी ना ऑप्शंस रिमूव कर रही हूँ बिकॉज आई नीड सम स्पेस इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन. देन विल गेट टू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन. देखो, अगर मैं HBRO को लूं तो HBRO किस में कन्वर्ट हो रहा है? Br2 में. अगर मतलब ये रिएक्शन कंसिडर किया जाए तो इसका Br को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलना बेटा. इसका -2 है, इसका +1 है, तो इसका +1 आ जाएगा, यस मैम. इसका 0 आ जाएगा, है ना? और इसमें E0 कैसे लिखा जाएगा मेरे को बताओ. ये रिडक्शन है या नहीं है? यस मैम, रिडक्शन है ना? तो इसको लिखा जाएगा E0 ऑफ HBRO2O2 Br2. That data is 1.595 वोल्ट. करेक्ट. अब हमने थोड़ा सा इसको बैक भी लेके जाना है, इसकी ऑक्सीडेशन भी देखनी है. HBRO जब कन्वर्ट होता है किसमें? BRO3 नेगेटिव में. इसको भी देख लेते हैं. यहाँ पे तो +1, ये इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? Br पे x -6 इज इक्वल टू -1, तो x कम्स आउट टू बी +5. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? +5 हो गई. यस मैम. ठीक है. और ये हमारे पास डाटा क्या दिया हुआ था? व्हाट इज द डाटा दैट वी आर बीइंग गिवन? व्हाइट कलर. ये ऑक्सीडेशन है. मतलब हमें दिया हुआ है E0 ऑफ BRO3 नेगेटिव टू HBRO, है ना? ये डाटा दिया हुआ है. दिस टू दिस, दिस टू दिस, समझ रहे हो? यस मैम. अब ये है +5, ये है +1, ये है, रिडक्शन. तो ये भी तो रिडक्शन है. दिस इज ऑल्सो रिडक्शन 1.5. ठीक है. अब हम क्या करते हैं ना कि अगर इसके डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है ये, तो E0 ऑफ सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. तो E0 ऑफ सेल की वैल्यू हमेशा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जिसकी हायर वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल की, उसमें से लोअर वैल्यू को माइनस कर लेते हैं, तो कुछ ऐसा आ जाएगा. ठीक है. तो इसका मतलब है कि HBRO ऐसी स्पीशीज है जो Br2 में भी कन्वर्ट हो सकती है और इसमें भी कन्वर्ट हो सकती है. और इन दोनों से जो सेल बनेगा, देखो ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है ना? तो इससे जो सेल बनेगा उसका आंसर क्या आएगा? फिजिबल. इसको छोड़ के आप ये काम किसी भी और स्पीशीज के साथ करके देख लेना, हमेशा E0 ऑफ सेल क्या आएगा उसमें? नेगेटिव. इसलिए इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर, तो मुझे याद नहीं है कौन सी ऑप्शन में. 4. ठीक है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन 4. तो इज दैट क्लियर? यस मैम. कैसे कैलकुलेट करते हैं? चलो, नाउ वी आर नॉट हैविंग इनफ टाइम, तो इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते. मैं एक क्वेश्चन लिख देती हूँ आपको. आप क्या करना, उसको ट्राई कर लेना, घर पे ट्राई कर लेना. 2Fe3 plus 2I negative gives 2Fe2 plus I2. This is the aqueous. This is the aqueous. This is again aqueous. ये इक्वेशन हमें दे रखी है.
इस इक्वेशन में ई नॉट ऑफ सेल दे रखा है 0.24 वोल्ट और डेल्टा जी नॉट दे रखा है, कैलकुलेट करना। एफ की वैल्यू बोल रहा है 96500 कूलम। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है -46.32 किलो जूल पर मोल। सेकेंड ऑप्शन है -23.16 किलो जूल पर मोल। थर्ड ऑप्शन है 46.32 किलो जूल पर मोल और फोर्थ ऑप्शन है 23.16 किलो जूल पर मोल। मुझे नहीं लगता कोई क्लास में ऐसा बच्चा होगा जिसको ये मुश्किल लगता होगा। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला सब बच्चों को निकालना आता है, बस इलेक्ट्रॉन चेंज सही कैलकुलेट कर लेना और नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. क्लास में आपको इसका एक तो डेल्टा जी की कैलकुलेशन का एक और मेथड मुझे ध्यान में आया, वो वैसे अभी तक तो देखो बहुत ज्यादा पूछा नहीं गया और पूछ भी सकता है, इसलिए एक और वो बता दूंगी और एक आपको बता के उसका फैराडेज वाला। देन विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन एंड उस सॉल्यूशन को हम 2 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे।